नमस्कार मित्रों, आज लेकर आए हम स्ट्रेसेस इन कॉनिकल बॉटम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। इसके पहले अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, तभी आगे का समझ में आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। दिस फिगर शो अ सिलेंड्रिकल और सर्कुलर टैंक विद कॉनिकल बॉटम. Let h is the height of cylindrical portion and hc be the height of conical portion. Let the conical wall subtended an angle theta with the horizontal let us consider a section XX of the conical bottom. X section of conical bottom. Now let W be the total load above the section transmitted by the water column of radius B. Therefore, W is equal to volume into density of water, means pi B square H into small w. Where B is a diameter of segmental bottom and H depth from cylindrical to at section XX, and W is the unit weight of water. This is equation number first. Now, weight of water per 1 mm of circumference of section XX is equal to W total load divided by 2 pi B. So W is equal to 9.81 unit weight of water into pi into B square into H. The dimension of B and H are in meter, so it convert in mm, multiplied by 1000 divided by 2 pi B into 1000, because B of in meter, so it convert in mm. 1000 to 1000 cancel out, and which is equal to 9.81 by 2 BH in Newton per mm. So this is equation number 2. Now, if
T is the meridional tension per mm of circumference. Its vertical component will balance the weight of water per mm circumference. Therefore, T sin theta is equal to 9.81 by 2 into BH. Or T is equal to 9.81 B into H by 2 sin theta, which is equal to 9.81 B into H cosec theta by 2. This is equation number 3 in Newton per mm. Hence, stress in the radial joint is Fr is equal to 9.81 B into H cosec theta divided by 2Tc, where T is the thickness of conical bottom, thickness of plate at conical bottom, now stress in circumferential joint. Consider two horizontal sections so that they intercept 1 mm length of cone. This 1 mm length of cone surface will be subjected to hydrostatic water pressure. So we know that P is equal to WH is equal to 9.81 into 10 raised to minus 3 H Newton per mm square. This pressure P is resolved into two components,
नंबर 1, कंपोनेंट P1 along the length of cone, and number 2, component P2 in the horizontal direction. यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि जो प्रेशर था P, वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, P1 और P2। तो जो पहला P1 है वो कंपोनेंट P1 अलोंग द लेंथ ऑफ द कोन, तो लेंथ ऑफ द कोन ये है, तो ये P1 हो जाएगा। एंड दूसरा कंपोनेंट था P2 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, तो ये P1 हुआ, ये P2 हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसको मैं अलग से डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमने जंक्शन पॉइंट से कोनिकल पोर्शन को हमने शिफ्ट किया है जो ट्रायंगल से बन रहा था। तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 90 माइनस थीटा। ये था आपका P1 जो कि था अलोंग टू लेंथ ऑफ द कोन, एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा P2। आप इसको देखिए, और P आपका क्या रहेगा, वाटर प्रेशर रहेगा। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं। सपोज ये आपका P1 हो गया इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने मान लिया P2, तो ये हो जाएगा आपका P एंड ये हो जाएगा आपका थीटा एंगल। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P कॉट थीटा एंड P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P कॉसेक थीटा। such that resolve component P1 is equal to P cot theta and P2 is equal to P cosec theta. The component P2 induced circumferential stress, therefore stress in circumferential जॉइंट FC, तो FC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 2 इंटू B अपॉन 2TC। P2 component P2 in the horizontal direction, P2, this is a P2 and this is a 2B अपॉन 2TC, 2 कैंसिल आउट 2 2, तो यहाँ से आपका FC इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा P2 इंटू B बाय TC। बट आपको पता है कि P इज इक्वल टू कितना था, 9.81 इंटू 10⁻⁻³ H। तो यहाँ पर जो P2 है वो हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻³ H कॉसेक थीटा। अब इस वैल्यू को ले जाकर हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से आपका FC इज इक्वल टू हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻³ H कॉसेक थीटा इंटू B इंटू 1000 डिवाइड बाय
टी सी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9.81, 10⁻⁻³ या 10⁻²+3, दिस इज कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा आपका 9.81 बी एच कॉसेक थीटा अपॉन टी सी। फाइनली यहाँ से आपको एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 9.81 बी एच कॉसेक थीटा अपॉन टी सी। दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन। तो अभी तक आपने पढ़ा स्ट्रेस इन रेडियल जॉइंट एंड स्ट्रेस इन सर्कमफेरेंशियल जॉइंट, अर्थात एफ आर एंड एफ सी। तो इन दोनों के रिलेशन में एक नोट है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। नोट, स्ट्रेस इन सर्कमफेरेंशियल joint FC is twice the stress in radial joint. Radial joint FR. That is FC is equal to 2FR। ये आपको ध्यान में रखना है। अब निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन रेडियल एंड circumferential joints। तो अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहला था आपका स्ट्रेस इन रेडियल जॉइंट और दूसरा हमने पढ़ा है स्ट्रेस इन सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। अब जो पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस इन रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल जॉइंट है। तो रेडियल स्ट्रेस में आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़े हैं कि एफ आर इज इक्वल टू 9.81 बी इंटू एच कॉसेक थीटा बाय 2TC। यहाँ पर क्या करना कुछ नहीं है, h इज इक्वल टू हमको रखना है h प्लस एच सी माइनस बी टेन थीटा। तो छोटा डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टैंक का सिलेंड्रिकल पार्ट था, यहाँ हमने जंक्शन पॉइंट दिया था, यहाँ से ये आपका कोनिकल बॉटम, ये आपका कोनिकल बॉटम हो गया। ये जो डेप्थ था ये था आपका h और यहाँ से ये था आपका HC। आपने एक सेक्शन एज्यूम किए थे, यहाँ से जो आपने लिया था h, ये सेक्शन दिए थे हम x, तो हमको यहाँ तक की हाइट फाइंड करना है। तो ये h इज इक्वल टू हमने लिया h प्लस एच सी माइनस बी टेन थीटा। इस इक्वेशन h का जो मान है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 9.81 बी एच प्लस एच सी माइनस बी टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइड बाय 2TC। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये हो जाएगा डी एफ आर अपॉन डी बी।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा 9.81 H प्लस एच सी माइनस 2B tan थीटा अपॉन 2TC इंटू कॉसेक थीटा। अब रेडियल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा? जब DFR पॉइंट डी बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस एट रेडियल जॉइंट DFR अपॉन DB इज इक्वल टू 0। Therefore H प्लस एच सी माइनस 2B tan थीटा इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो tan थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय 2B। बट अगर फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू एच सी बाय डी बाय 2, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू एच सी बाय डी बाय 2 शिफ्ट करेंगे और इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका एच सी डिवाइड बाय डी बाय 2 इज इक्वल टू एच प्लस एच सी बाय 2B। Since the maximum value of B can be D by 2, means जो B का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है आपका D by 2, and this expression will be valid only for D by 2 is greater than or equal to D by 4 1 plus H upon HC। अब इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू, हमको निकालना क्या, यहाँ से B का मान ही निकालना है, तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो ये जाएगा D बाय 4 1 प्लस H अपॉन HC। तो इस एक्सप्रेशन से B का मान D बाय 4 1 प्लस H अपॉन HC, ये आपका B का मान होगा। बट अगर हम डायग्राम को देख रहे हैं तो उसमें जो B का मैक्सिमम वैल्यू है वो D बाय 2 ही हो सकता है। तो B का मैक्सिमम मान D बाय 2 होगा और जो हम फाइंड कर रहे हैं B इज इक्वल टू D बाय 4 1 प्लस H अपॉन HC फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो वैलिड कर रहा था जब D बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D बाय 4। ये पूरा का पूरा मान क्या है आपका, ये B है। अर्थात यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि D बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। और HC तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नाउ सिंस जनरली HC is less than capital H, the maximum
value of stress occurs at the junction of cylindrical cell and conical bottom. तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.81 इंटू आर। एच की जगह में रख देंगे एच कॉसेक थीटा, तो ये जाएगा कैपिटल एच कॉसेक थीटा बाय 2TC। ये फार्मूला आपको काम देगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन circumferential joint FC मैक्स इज इक्वल टू जाएगा आपका 9.81 आर एच कॉसेक थीटा अपॉन TC। न्यूटन पर एम स्क्वायर। अतः जो थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, हेंस थिकनेस ऑफ प्लेट TC इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा आपका 9.81 D/2 H कॉसेक थीटा अपॉन efficiency eta into sigma 8t। वेयर efficiency eta जो क्या है, efficiency ऑफ जॉइंट, और सिग्मा 80 है परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो आपको ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ कोनिकल प्लेट निकालने काम में आएगा। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ अगला इसके आगे का लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।